جان بچانے والی ادویات عرصہ دراز سے نایاب، مرگی کے مریضوں کی دوائی ٹیگرال بلیک میں فروخت ہونے لگی۔ ٹیگرال کی 10 گولیاں 70 روپے کے بجائے 400 میں بکنے لگیں۔ ہیپرین انجیکشن، ہیمولین، انسولین سمیت دیگر جان بچانے والی ادویات بھی ناپید۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو دوائی نہ ملنے پر شدید پریشانی کا سامنا۔ صورتحال کیا ہے یہ بتائیں گے سجاد حسین جی، بتائیے۔ جی بالکل، جان بچانے والی ادویات عرصہ دراز سے نایاب ہیں اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور پنجاب ڈرگ کنٹرول ونگ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ مرگی کے مریضوں کی دوائی ٹیگرال بلیک میں بکنے لگی ہے اور ٹیگرال کی 70 روپے والی 10 گولیوں کا جو پیکٹ تھا وہ اب مارکیٹ میں کہیں کہیں ملتا ہے اور وہ بھی صرف 400 روپے میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح عرصہ دراز سے ہیپرین انجیکشن بھی مارکیٹ سے غائب ہے، جس کے باعث جو ہے گردے کے ڈائلسس میں مریضوں کے استعمال ہونے والے اس انجیکشن سے شدید اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ہیمولین انسولین بھی شوگر کے مریضوں کے لیے نایاب ہے۔ اینٹی بایوٹک کا موکسل کیپسول، درد کی نیمز گولی ٹیگرال اور آئیبریٹ فولک گولی بھی مارکیٹ میں نایاب ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سمیت وفاقی گورنمنٹ ادویات پر خاموش تماشائی نظر آ رہی ہے، جبکہ مریضوں کو دوائی نہ ملنے پر شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والے ڈرگ انسپیکٹر کی جانب سے بار بار اطلاع دینے کے باوجود وفاقی گورنمنٹ یا ٹریپ کی جانب سے عوام الناس کی معلومات کے لیے کسی قسم کا اشتہار جاری نہیں کیا جا رہا ہے۔ ادویات کی نایابی کی وجوہات کیا ہیں اور مریضوں کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ادویات کی نایابی پر نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ جی اپیل کی ہے سجاد حسین، بہت شکریہ آپ کا اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر اور فیصل سیف الملوک کھوکھر لندن طلب کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیف کھوکھر اور فیصل سیف کھوکھر کل لندن روانہ ہوں گے۔ سیف الملوک کھوکھر قائد نون لیگ کی وطن واپسی کے استقبال کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر اور فیصل سیف الملوک کھوکھر لندن طلب۔ ذرائع کے مطابق سیف کھوکھر اور فیصل سیف کھوکھر کل لندن روانہ ہوں گے۔ سیف الملوک کھوکھر قائد نون لیگ کی وطن واپسی کے استقبال کے انتظامات سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کا یہ معاملہ ہے۔ صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر اور فیصل لندن طلب کر لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سیف کھوکھر اور فیصل سیف کھوکھر کل لندن روانہ ہوں گے۔ نگران صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر کا جنرل ہسپتال کا دورہ، نئے نصب ایئر کنڈیشنز کا معائنہ کیا، میڈیکل وارڈ میں مریضوں سے سہولیات بارے بھی دریافت کیا۔ مریضوں کا ایئر کنڈیشنز اور دیگر طبی سہولیات کی فراہمی پر اظہار کا اطمینان۔ صوبائی وزیر تعلیم نے گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ کی بھی عیادت کی۔ تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز جی، بتائیے۔ جی بالکل، نگران صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر نے آج جنرل اسپتال کا اچانک دورہ کیا اور صوبائی وزیر نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پچھلے ایک ہفتے میں نصب ہونے والے ایئر کنڈیشن کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے میڈیکل وارڈ میں مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں کا ایئر کنڈیشنرز اور دیگر طبی سہولیات کی فراہمی پر اظہار اطمینان، اور اس کے ساتھ پروفیسر جو ہے پرنسپل کالج کے الفرید نے دن رات محنت کر کے مختصر وقت میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر عمل درآمد کروایا ہے، یہ کہنا تھا لائقین کا۔ وزیر تعلیم نے گھریلو تشدد کا شکار رضوانہ کی بھی عیادت کی۔ رضوانہ کی مکمل علاج معالجے کی وزیر اعلیٰ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، یہ کہنا تھا منصور قادر کا۔ رضوانہ کی ذہنی اور جسمانی حالت کی مکمل بحالی تک ہر ممکن طبی سہولیات جاری رکھی جائیں گی۔ جی ٹھیک عاطف پرویز، بہت شکریہ آپ کا۔ سابق صوبائی وزیر اعجاز علم اگسٹن اور دیگر مسیحی رہنماؤں نے سانحہ جڑاوالا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ مبین حیدر کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق صوبائی وزیر اعجاز عالم اگسٹن و دیگر کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ رہنماؤں نے سانحہ جڑاوالا کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ افسوسناک واقعہ مسیحی برادری کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اعجاز عالم اگسٹن نے واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاپرواہی برتنے والے تمام پولیس اہلکاروں کو معطل کیا جائے۔ صبح 5 بجے سے واقعہ ہو رہا ہے اور مختلف گاؤں سے لے کر جہاں جہاں ان کو چرچ ملتا تھا وہ اس کو جلا رہے تھے اور اپنی مرضی سے وہ کام، ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ کہ کیا وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ بر وقت جو ہے
वो रेंजर को तलब करते ताकि नुकसान जो है कम से कम होता। इस मौका पर दीगर मसीही रहनुमाओं का कहना था कि मसीही बरादरी पाकिस्तान से मोहब्बत करती है। हुकूमत चर्च और नए घर बनाने से पहले मुजरिमों को करार वाकई सजा दे। कैमरामैन फैसल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेरे तमाम तालीमी इदारों के किरदार के मौजू पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। साबिक सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौका पर राना मशहूद का कहना था कि तालीम के फ़रोग में प्राइवेट स्कूलों का अहम रोल है। इलेक्शन फरवरी 2024 में होंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ जारी हैं। यहाँ साहब बिल्कुल उनकी वापसी की तैयारी हो रही है, भरपूर तैयारी हो रही है। पाकिस्तान जिस गर्दाब में फंस चुका हुआ है, इससे नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज ही निकाल सकती है और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। दो स्ट्रेटजीज़ हैं। एक है कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद लैंड करें और वहाँ से फिर काफ़िले की शक्ल में उनको लाहौर तक लाया जाए, एक अज़ीमुश्शान और एक, क्योंकि कौम की उम्मीदों का महवर अब नून लीग है। तकरीब में सदर एप्सा शबीर अहमद हाशमी, मोहम्मद शुएब खान और पंजाब भर के प्राइवेट स्कूल सरबराहान ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। LDA का एसफॉल्ट प्लांट 5 साल बाद दोबारा फाल कर दिया गया। प्लांट फाल होने से शहर की गलियों और शाहराहों पर बर वक्त कारपेटिंग का काम होगा। प्लांट रोजाना 120 एसफॉल्ट बनाने की गुंजाइश रखता है। तफसीलात क्या हैं ये बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी बताइए। ये लाहौर के वासियों के लिए अच्छी खबर है कि जो उनको कई माह इंतज़ार करना पड़ता था कि उनके घरों के बाहर और जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और LDA उनकी मुरम्मत का काम नहीं करता, तो अब उसमें बड़ी पेशरफ ये सामने है कि LDA ने अपना जो असफाल्ट प्लांट है जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से बंद था, उसको आज बाकायदा तौर पर फाल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी यहाँ पर पहुँचे असफाल्ट प्लांट के मुकाम पर। उन्होंने इसको फाल करने के हवाले से इसका इफ्तिताह भी किया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये जो असफाल्ट प्लांट 2011 में इसकी रनिंग शुरू हुई थी, उसके बाद ये 2018 तक बड़ा अच्छा इसने काम किया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और 5-6 साल ये बंद रहा। अब ये है कि CM साहब की हिदायत पे उन्होंने बड़ा, मैं समझता हूँ कि बड़ा एहसन कदम उठाया है कि उनकी हिदायत ये थी कि जी आप जो भी M&R का काम है ख़ुद करें। आप कॉन्ट्रैक्टर से करवाते हैं, उसमें एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है और देर भी बहुत लगती है। तो उस हवाले से हमने इसको एनर्जाइज़ कर दिया है, फंक्शनल हो गया आज। अब इसका सूरत हाल ये है कि जो M&R है उसमें जो असफाल्ट का काम है बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्टर EME LDA असद जाफरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जाफरी साहब, एक चीज़ ये फरमा दें कि इसमें कितना रोज़ाना की बुनियाद पे ये जो असफाल्ट है इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है? ये 1300 टन जो है वो निकाल लेता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो 120 टन पर घंटा के हिसाब से है और ये पहले आउटसोर्स रहा और अब भी हमारा ये मशवरा तो यही है कि इसको आउटसोर्स कर दिया जाए। उससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये रेवेन्यू जनरेट करेगा LDA के लिए और दूसरा जो हमें असफाल्ट चाहिए होगी वो हमें मिल जाएगी और तीसरा ये हमें पैसे भी कमा के देगा। ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट था जो कि हमने लगाया हुआ है और इर्द गिर्द के इलाके में इस तरह का प्लांट अवेलेबल नहीं है और यही वजह है कि इस प्लांट का ये CM साहब के हुक्म पे चलाया है। जी, ये LDA का जो है वो पहला प्लांट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने डायरेक्टर EME असद जाफरी की आपने गुफ्तगू सुनी। ये जो असफाल्ट प्लांट है ये वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर LDA में एक M&R सेक्शन बनाया गया है जो कि मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करेगा और शहर लाहौर के वासियों को इससे बिलवास्ता और बिला वास्ता फ़ायदा होगा कि जब गलियाँ लशपश होंगी, हर जगह पे किसी जगह पे गड्ढे नहीं होंगे, तो ट्रैफिक रवानी भी बेहतर होगी और लोगों के मसाइल में भी कमी आएगी। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। म्यो हस्पताल रोड इदारों की नाअहली की नज़र हो गया है। ज़ेर तामीर रोड कई माह से टूट फूट का शिकार है, जबकि टूटी सड़क के बायस हादसात मामूल बन गए हैं। कारोबार भी मुतासर हो गया। दुकानदार कहते हैं कि ख़राब सड़क के बायस ख़रीदार रुकना पसंद नहीं करते। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ म्यो अस्पताल रोड पर और म्यो अस्पताल रोड जो है वो एक दफ़ा फिर से इदारों की नाअहली की अक्कासी करने लगा है। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये एक कारोबारी इलाका है, यहाँ पर कपड़े की मार्केट है और उसके अलावा यहाँ पर म्यो हॉस्पिटल का एक गेट लगता है जो कि एमरजेंसी बेसिस पर यूज़ किया जाता है। ये सड़क जो है वो मुतअद्दिद महीनों से तोड़ी गई थी सीवरेज डालने के लिए और उसके बाद इदारे जो हैं वो शायद सड़क को दोबारा बनाना भूल चुके हैं, जबकि जो कारोबारी शख्सियात हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर कारोबार करना शदीद मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर
पर जो सड़क की सूरत-ए-हाल है उस वजह से जो गाहक हैं वो रुकते नहीं हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कारोबार करने वाली एक शख्सियत मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि ये सड़क कब तोड़ी गई और इसको तोड़ने की वजह क्या थी? ये तकरीबन 8-10 महीने पहले इन्होंने सीवरेज डाला है, उसके बाद 2-3 महीने बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा है, तो इन्होंने पूर कर दिए, उसके बाद ऐसे ही पड़ा रहा है, ऊपर मिट्टी रेत डाल के चले गए हैं। उसके बाद फिर 2-3 महीने के बाद उन्होंने रोड़ी बिछाई है, उसके बाद वो दोबारा नहीं आए यहाँ पे। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि जो कारोबारी शख्सियात है उनका कहना है कि इदारा काम तो करता है लेकिन 3 से 4 महीने के वक्फे के बाद। अगर मैं सड़क की बात करूं तो जो ये म्यू अस्पताल की सड़क है ये हैवी ट्रैफिक के लिए भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये वो मेन शाहराह है जो रास्ता शहाल मार्केट की तरफ भी निकलता है और उसके बाद दातागंज वक्त दरबार की जानिब भी निकलता है। जबकि जो गुजरने वाली ट्रैफिक है उनका भी शहरियों का कहना है कि हमारा यहाँ से रोज का गुजर है, क्योंकि रास्ता जो है वो थोड़ा सा छोटा पड़ता है, लेकिन सड़क खराब होने के बायस एक तो गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम होती है उसमें वक्त भी ज़ाया होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल का दौरा किया, इमरजेंसी तोसी प्रोजेक्ट और सराय का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि सेहत के शोबे में पुराने सिस्टम को ठीक करना तरजीह है। चिल्ड्रन हस्पताल में इलाज मौलजी की बेहतरीन सहूलियात मुयसर हैं। सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर का दौरा किया, इमरजेंसी तोसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जो 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। कमसिन मरीजा महानूर और 9 उम्र मोहम्मद कमर जावेद से फीता कटवाया। इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने ORS रूम, आइसोलेशन और दीगर शोबों का मुआयना किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हस्पताल की सराय का इफ्तिताह भी किया। मोहसिन नकवी की सराय में मुकीम वालदैन से बातचीत हुई, उनसे सहूलतों बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हेल्थ में कोई प्रोजेक्ट लाने की बजाय पुराने सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आए मरीजों का इलाज और लवाहिकीन की रिहाइश का बंदोबस्त मौजूद है। आखिर में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन हस्पताल के अक़ब में चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के ज़ेरे तकमील प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। प्रोजेक्ट की मुद्दत तकमील 2025 है।